Welcome to VARNAN Learning. Today I am starting the lecture with a few questions of CSIR NET Part A from June 2019. So I begin up with the question. This is the distribution of grades secured by students in a class is given in the table below. That is grades. We are given up with the grades, that is A, B, C, D, and fraction of the population 0.1, 0.4, 0.3 and 0.2. Ignore this into 10. This is just I have given you with the explanation point of view. So for grade A, fraction of the population is 0.1, for B 0.4, and for C 0.3, and for D 0.2. What is the least possible population of the class? We are given up with the four options 2, 4, 8 and 10. Let's see how we will solve this. See, population over here is given in decimals. तो population हमारी कभी decimals में नहीं हो सकती है. So हम क्या करेंगे, हम ये जो decimals दिए हुए हैं, the simple format to do this is हम ये सारे decimals को हम whole number में convert करेंगे. तो अगर हम whole number में convert करते हैं तो 1 to 9 अगर हम कोई भी number लेते हैं तो वो अगेन डेसिमल्स की फॉर्म में आ जाएगा. लेट्स सी 0.1 इंटू 1 इज 0.1, 0.1 इंटू 2 इज 0.2. अगर हम 9 तक कोई भी नंबर लेते हैं तो दिस विच इज अगेन डेसिमल. तो हमारा जो करेक्ट आएगा वो आएगा 0.1 को जब हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं इट इज कमिंग आउट टू बी 1 विच इज करेक्ट. So 0.4 into 10 is 4, 0.3 into 10 is 3, 0.2 into 10 is 2. So जो यहाँ पे मीन्स मिनिमम पॉपुलेशन जो होगी वो यहाँ पे 10 होगी. सो द मिनिमम पॉपुलेशन विच कैन बी possible in this class is 10. So option 4 is the right answer. So let's move to another question. Another question says two runners starting together run on a circular path taking 6 and 8 minutes. This means दो रनर हैं सर्कुलर पाथ में ही इसी के चारों तरफ दौड़ रहे हैं. एक ए है, सपोज एक ए है एक बी है, तो एक लेता है 6 मिनट्स इस पूरे राउंड को कवर करने में और बी लेता है 8 मिनट्स इस पूरे राउंड को कवर करने में. टू 6 and 8 minutes respectively to complete one round. How many minutes later do they meet again for the first time on the start line assuming constant speeds? See, ignore this. I have written twice. So the question is how many minutes later do they meet again for the first time on the start line assuming constant speeds? तो ये कितने मिनट्स बाद दोनों मिलेंगे? तो if see I have solved this question by two ways. अब पहला तरीका देखते हैं कैसे होगा. अगर यहाँ पे क्वेश्चन में स्मॉल टर्म्स दिए हैं जैसे 6 और 8 दिया है तो इसका एक फॉर्मेट जो है वो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो. सपोज राउंड, आई हैव रिटन ओवर हियर राउंड, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड एंड फोर्थ राउंड, एंड ए एंड बी आर टू पर्सन. सपोज ए पहले राउंड में 6 मिनट्स लेता है एक पूरे राउंड को कन्वर्ट को चारों तरफ दौड़ने में. सेम बी लेता है 8 मिनट्स. सेकेंड राउंड में ए 6 प्लस 6 ले लेता है 12 एंड बी लेता है 8 प्लस 8 16. एंड अगेन थर्ड राउंड में ए लेता है 6 प्लस 6 प्लस 6 18 एंड बी लेता है 8 प्लस 8 इज 24. देन अगेन फोर्थ राउंड में ए लेता है 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6 is 24. That means after 24 minutes they will meet again. अगर सपोज हमें ए और बी टर्म्स दी होती फॉर 50 और 40 तो हम इसको कैसे सॉल्व करते? तो इस फॉर्म से अगर हम सॉल्व करते तो ये काफी लेंथी प्रोसेस हो जाता. तो इसके लिए आप सिंपल एलसीएम लेके भी कर सकते हैं. यहाँ पे मैंने इसी क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व बाय द वे ऑफ एलसीएम भी बताया है. सपोज 8 और 6 का आप एलसीएम लेते हैं तो इट विल कम आउट टू बी 24. हाउ? 8 and 6 का एलसीएम लिया है हमने. 4 2 जा 8, 3 2 जा 6 and 4 1 जा 4. We will write 3 like this only. Then again 3 1 जा 3. Multiply 2 into 4 into 3 is coming out 24. So the answer for this question is option 2, that is 24. I hope you understand this question. Now moving to another question. Another question says the 9 numbers x1, x2, x3
x2 x9 आर इन असेंडिंग ऑर्डर, मीन्स ये सबसे छोटा नंबर है एंड दिस इज सबसे बड़ा नंबर है. सो देयर एवरेज is m is strictly greater than all the first 8 numbers. Which of the following is true? तो इस क्वेश्चन में ये हमें दिया हुआ है, we are given over here the average of x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 and x9 is m. यहाँ पे हमें इसका एवरेज दिया हुआ है. So we will check the option 3. तो हम ऑप्शन 3 को चेक करते हैं. क्यों हम ऑप्शन 3 को चेक करते हैं? हमने यहाँ पे सबसे पहले ऑप्शन 3 को इसलिए चेक किया है, देयर एवरेज m इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर, तो इसका जो एवरेज है वो ग्रेटर होगा, यहाँ पे दिया हुआ है. सो हम देखते हैं कैसे इसको सॉल्व किया है. तो अगर हम लेते हैं यहाँ पे पहली कंडीशन चेक करेंगे, x1 x2 एंड टिल x9 एंड इसके साथ हमने m ले लिया है जो कि इसका एवरेज है, दैट विल ऑल्सो कम आउट टू बी m. हाउ? लेट्स सी. ये इसको हमने पूरे को एक टर्म ले लिया m. फाइन. सो वी विल राइट ओवर हेयर m एंड कॉमा m यहाँ पे दिया हुआ है, तो हम इसको m को इसके साथ एडिशन में लिख देंगे, m प्लस m डिवाइडेड बाय 2. अगर हम इसका एवरेज लेते हैं तो ये दो टर्म्स हो गई, एक टर्म ये हो गई और एक टर्म m हो गई, तो m प्लस m डिवाइडेड बाय 2, इट्स एवरेज इज कमिंग आउट टू बी m. और ये जो m है इस पूरे का, दिस इज अगेन कमिंग आउट टू बी m. सो हमने यहाँ पे क्या किया, सपोज ये जो टर्म है इसको हमने m ले लिया, और अगर हम इन दोनों इस पूरे का एवरेज निकालते हैं तो क्या आ रहा है, m टर्म ये हो गई, m टर्म ये हो गई, तो m प्लस m डिवाइडेड बाय 2, इट इज कमिंग आउट टू बी m, तो वो हमारा m के इक्वल है. सो दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड, मीन्स दिस पार्ट इज करेक्ट. नाउ वी विल चेक द सेकेंड पार्ट. सेकेंड पार्ट सेज एवरेज ऑफ x2 x3 to x9 is greater than m. लेट्स सी हाउ. अगर हम इसमें फर्स्ट टर्म कट कर देते हैं, फर्स्ट टर्म हमने कट करा विच इज द लीस्ट वन, दैट इज x1, तो हमें क्या लेना है, x2 x3 to x9. इसका इस पूरे का एवरेज जो है वो ग्रेटर देन होगा m से. सो ये अलजेब्रा का क्वेश्चन है. अगर आपको इससे x से समझ नहीं आ रहा है तो लेट्स सी, हम यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं. अगर हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 का एवरेज लेते हैं हम, तो क्या आएगा, 36 डिवाइडेड बाय 8, दैट इज 4.5. ठीक है. अगर हम इसमें फर्स्ट टर्म कट करते हैं तो क्या कट कर दिया 1, तो 2 3 4 5 6 7 8 बचा. इसका अगर हम एवरेज लेते हैं तो क्या आया, 5. तो मीन्स अगर हम जो एवरेज हमें दिया है, ये अगर हम फर्स्ट टर्म कट करते हैं तो उसका एवरेज हमारा m से ग्रेटर आएगा. सो हमारा प्रीवियस एवरेज आ रहा था 4.5 एंड अगर हमने फर्स्ट टर्म कट किया है तो 5 आ रहा है. So 5 is greater than 4.5. So option number 3 is satisfied. So option number 3 is the right answer. ये क्वेश्चन हमारे algebra से है. Now coming to another question. A boy and a girl make the following statement of which at most one is correct. At most one is correct means सिर्फ एक correct है, either one or two. So the one in a white shirt says I am a girl. Statement 1. The one in a blue shirt says I am a boy. Statement 2. तो इन दोनों में से एक कंडीशन ठीक हो सकती है, या तो स्टेटमेंट 1 करेक्ट होगी, स्टेटमेंट 2 रॉन्ग, या स्टेटमेंट 2 करेक्ट होगी, स्टेटमेंट 1 रॉन्ग होगा. सो द स्टेटमेंट 1 इज द करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, बट वी आर नॉट नोइंग कि कौन सी करेक्ट है कौन सी इनकरेक्ट है. अगेन द स्टेटमेंट 2 is correct but statement 1 is incorrect. Again the same condition is there, but both statement 1 and 2 are correct. Both statement 1 and 2 are incorrect can be the condition. अगर यहाँ पे दिया होता both statement 1 and 2 are correct, तब भी हमारा wrong होता. क्यों यहाँ पे at most 1 is there written over here. The another is the correctness of statement 1 and 2 cannot be certain. ये भी गलत है. Why? Because at most 1 is correct. तो एक तो correct दिया है. So this is also the wrong answer. So according to me, the answer will be option number 3, that is both statement 1 and 2 are incorrect. So I hope you understand this question. I will be coming back with few more questions in the another video. Thank you class.